Hi everyone, I Chinmay on behalf of Pragyata Foundation welcomes you all. Today, once again, we have Mr. Shah Azaz with us, who is a senior journalist and also a motivational speaker. And he hails from a very beautiful place in India, it's Kashmir. Welcome to you, sir. Thank you so much. We would be today talking about cyber crimes, fraud, and scams. So, starting with, first of all, sir, हमें आप ये बताइए कि what is the cyber world? Yeah. Before we start, once again, this is the second part of what we have previously discussed. I'm very much thankful to you and your organization for inviting me for this session, and it's a pleasure always. So, in the start, what you have asked me about the cyber world. See, everybody knows the world. Let me keep it very simple so that our audience, the younger ones especially, they can get it completely. So we have a world, as everybody knows, that earth is round, it's a spherical, somebody says some other things. The geographical shape is known to everybody. We have to travel distances like we do in whatever the transport is available, and we reach the distances, we reach the people, and we interact with those people. Now the cyber crime, cyber world is something that is all virtual. But what is that virtual world? Let me tell you. When the use of computers came in the normal life of people, they started interacting with each other through internet, through the medium of internet. So internet has become a mode of, you can say, a virtual transport, where a person sitting at his home reaches other place and makes contacts with other people. So similarly, there's a web made out of these internet connections all across the world, and that world which connects people living in different parts of the world, they are getting connected through a medium of internet, that all space that is called cyberspace. So this is a cyber world, you can say. This world makes a person able to interact with others who are sitting far away from them. So it is like a web which is interconnected. So the people connected to this world, they are all a part of this cyber world. Okay. Yeah. Okay. So this is about what you explained कि cyber world क्या होता है, how cyber world connects us with people who are very far from us. But since ये second part है हमारे first part का, what are the merits and demerits of use of social media, तो ये basically internet हमें connect करता है एक दूसरे से. This is a medium from which we should be happy and sharing good things with each other. But अनफॉर्चुनेटली ये साइबर क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, स्कैम्स होते हैं. तो सर ये साइबर, आफ्टर यू एक्सप्लेन व्हाट इज साइबर वर्ल्ड, व्हाट डू यू मींस व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट व्हाट इज साइबर क्राइम? Yeah. Coming to the cyber crime part, let me once again, as you already discussed, the thing that we have discussed so many things in the first episode. The thing is that we started talking about social media, the advantages, the merits and demerits of social media. Social media is actually an advanced part of the cyber world. First, when this all started, it was like a dream. Nobody could ever know that he or she sitting in Africa may have friends in America, or may have friends in Asian countries, or may have friends in European countries. But this internet has made everything possible. So we are connected in a world that is a cyber world now. But as you have heard, maybe people have heard that when the things become easy, when the things go easy, the trouble doubles. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही होता है कि साइबर वर्ल्ड ने आपको एक एडवांटेज दी, दैट यू आर connected with those people whom you have never met, whom you never know anything about them, but you come to know about them on internet only. You come to know about various things, about discoveries, about inventions, about scientists, about everything on internet. This is a part of cyber world. When I am connected to this cyber world, I need to be very cautious. Why? Because the thing that you have asked now is that
when the things go very easy, the crime doubles, the trouble doubles. Not doubles, even it triples and multiplies there onwards. So we need to be very cautious. Now coming to the question, what is a cyber crime? Any crime that is committed using that cyber space, using that internet, using that computer world, that crime is called a cyber crime. Now there are different crimes. Okay. तो सर कुछ साइबर क्राइम्स के एग्जांपल्स आप देखे एक्सप्लेन करना चाहेंगे, जैसे अभी लेटेस्ट केस चल रहा है पेगासस का, विच इज वेरी मच ऑन मीडिया एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. इज इट अ पार्ट ऑफ साइबर क्राइम? Yeah, you can say, but it's not actually that cyber crime what we are talking about, what the common man deals with. This is not something like that. This is actually a high-tech spyware. It's a software that spies on people. That's why it's called a spyware. It's a software that is used, for the surveillance of mobile phones. It's a remote surveillance application or software, you can say. It's a spyware, but these softwares, it is actually Israeli based. It has been made by a company that is Israel based. It is actually New Shalav and Omri, NSO. जैसा आप सबने सुना होगा, NSO. So they are the founders. These are the three people who are the founders of this software, and they have made this software. It is a high-tech software that is used for remote surveillance of the mobile phones. High-end, yeah, it's a very high-end software that is used to keep a spy watch on people who are on that list. And you might have heard, जैसा कि आपने खुद बताया, अभी सुर्खियों में काफी हेडलाइंस में चल रहा है, सब जर्नलिस्ट को जो है इसका निशाना बना दिया गया है, पॉलिटिशियंस. There is, Right. but इसके लिए you need to buy this software from the company, and it costs very huge. So why would a person buy a software to keep an eye on an ordinary person? नहीं है ना, कोई सवाल ही नहीं बनता. अब आप लाखों करोड़ों में कोई सॉफ्टवेयर खरीदे आम आदमी को सर्वेलेंस के लिए, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता. तो ये जो हमारा टॉपिक है, इट्स फॉर कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए. सो पेगासस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट फिर भी आपने मुझसे पूछा तो एक चीज बनती है कि पेगासस के बारे में लोगों को ये बता दूं कि इट्स एन NSO फाउंडेड सॉफ्टवेयर, जो इजरायली कंपनी है, और उस इजरायली कंपनी से डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स ये सॉफ्टवेयर खरीदती है, एंड दे मेक इट फॉर द यूज ऑफ एनी जो दैट इज ऑफ utmost importance regarding their country's secrecy, regarding their country's security, or maybe there's some bigger scams. If they if they want to unearth those scams, they make use of this remote surveillance software that's called Pegasus. So आम लोगों की जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, and people do not need to worry. एक चीज मैं बता दूं Pegasus के बारे में, ये है कि आपका जैसे मोबाइल फोन सब यूज करते हैं, कंप्यूटर सब यूज करते हैं, एंड एवरीबडी नाउअडेज बच्चे जानते हैं कि भाई मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में वायरस आ गया, अरे वायरस आ गया. सो दिस इज अ विजिबल थ्रेट जो उनको नजर आती है. आपका जो सिस्टम है मेल फंक्शन करने लगता है, आपको अच्छे से वो काम नहीं करता है, देन यू केम टू नो कि भाई कुछ गड़बड़ है, कुछ मेलवेयर इज देयर. सो दैट मेलवेयर इज अ वायरस जो आपको डिटेक्ट आराम से होता है. बट Pegasus इज सच अ सॉफ्टवेयर, such a spyware that is in your if you are getting targeted by anybody who's using that Pegasus, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि you don't know, nobody knows कि उनके फोन में कोई जासूस बैठा है जो उनकी पूरी इंफॉर्मेशन कहीं और पहुंचा रहा है. एंड इट इज सच अ डेंजर कि आपके प्राइवेट मैसेजेस, आपका इनबॉक्स, आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके पिक्चर्स जो आप क्लिक करते हैं, आपकी वीडियोस जो आप क्लिक करते हैं फैमिली में, वो भी कहीं और पहुंच जाते हैं विदाउट गेटिंग नोटिस. दिस इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, आई वुड से, और हाई एंड सॉफ्टवेयर जिसे आम लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है. बट इट इज ऑफ द यूज ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर जो पार्टीज हैं, उनको छोड़ देते हैं इस पे. खैर हम वापस आ जाते हैं, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन थी
जो हमारे व्यूअर्स को जो है काम आएगी कि पेगासस से डरने की जरूरत नहीं है आम आदमी को। अगर आपने बिल्कुल बड़ा बिल्कुल घपला किया, बड़े बड़े घोटाले किए हैं, तो तब आपको शायद डरने की जरूरत है, अदरवाइज आम आदमी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, बस एंड नाउ बिल्कुल 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 सर, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जहाँ तक कि आप आम आदमी की बात, क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं, एंड ऑल्सो आपने जिस तरीके से इसके बारे में, पेगासस के बारे में बताया, एंड हाउ इट इज अ रिमोट सर्वेलेंस ऑन फोन, ऑन इंडिविजुअल फोन्स, राइट? तो आम आदमी को ये अटैक करना इज बहुत ही दूर की बात है ये। तो आम आदमी किस तरीके के अटैक से इफेक्ट होता है? जैसे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं, फोन्स में मैसेजेस आते हैं, लॉटरी निकल गई, स्कैम्स होते हैं कि इस लिंक को आप क्लिक कीजिए, आपको ये जो फोन है या फिर कुछ है, इतने लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, कॉन्टैक्ट्स कॉपी हो जाते हैं। सो आम आदमी इन प्रॉब्लम से उलझता है। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई these scams and frauds जो आम आदमी को फेस करना पड़ता है? और क्या ऐसे सर्वेलेंस आम आदमी के लैपटॉप या फिर जो आप फोन्स हैं उन पे भी हो सकते हैं? देखिए, लास्ट एपिसोड में आपको शायद याद होगा, हमारी ऑडियंस को याद होगा कि मैंने एक बात बार बार कही थी कि पेरेंट्स का रोल बनता है, और पेरेंट्स के रोल में मैंने एक चीज साफ की थी, एंड दैट्स फॉर ईच एंड एवरीबडी, दैट कि पैसे के पीछे कभी मत भागना है, कभी नहीं भागिए आप पैसे के पीछे। अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं तो दैट इज व्हेन you become a potential victim of those frauds and scams. This is one of the bigger things you have to keep in your mind while using internet or while using your mobile phone. आज तो एंड्रॉइड है, iOS है, तो बाकी इस सब टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए if you're using it for your advantages, it's a very good thing. But if you are using it to, you know, to make easy money, that is when you are inviting the trouble. अब मैं बताऊंगा कैसे। आप सबको पता होगा कि 2007-8 के आसपास ही फेसबुक का जो है ज्यादा चलन शुरू हुआ था, तो तब तो बिल्कुल नया था ये। उसके बाद व्हाट्सएप आ गया, बाकी चीजें आ गई, बट फेसबुक की मैं नॉर्मली बात करूंगा। फेसबुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे करोड़ों लोग, अभी आप देखिए हमारी कंट्री में भी ऑलमोस्ट हर एक के पास अब फेसबुक का अकाउंट है। भले उसे पूरी तरह से चलाना आता है नहीं आता है, बट फेसबुक पे अब वो अवेलेबल है, बिकॉज पीपल हैव रियलाइज्ड कि फेसबुक पे बड़ी अच्छी जानकारी मिलती है, तरह तरह की न्यूज है, एडवर्टीजमेंट है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ है। बट इसी फेसबुक को जब स्टार्ट नहीं किया गया था, या जब ये बिल्कुल खास था, कुछ ही लोगों तक लिमिटेड था, उस वक्त भी मैं बताऊंगा कि फ्रॉड कैसे शुरू हुआ था। इट वाज लाइक 2007-2008 जब ईमेल लोगों ने शुरू किया था, खासकर हमारी यंगर जनरेशन, यूथ, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, they came to know about this email. What is email? It is actually an electronic mail, जब सबको पता है। तो एक वर्चुअल एड्रेस आपका बन जाता है। अब पोस्ट, जैसा फिजिकल पोस्ट ऑफिस था वो नहीं है, अब आप वर्चुअल पोस्ट ऑफिस आपका तैयार हो जाता है, घर बैठे बैठे आप कांटेक्ट करते हैं, आपको कम्युनिकेशन हो जाती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इस ईमेल के जरिए से एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी। कैसे शुरुआत हुई थी मैं आपको बता दूं। ईमेल में कभी कभी क्या होता था कि यू गेट एन ईमेल फ्रॉम अ पर्सन, वो आपको जानता नहीं, आप उसको नहीं जानते हो, लेकिन ईमेल के जरिए कैसे होता था, ये लिंक्ड है विद फेसबुक एंड अदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। सपोज आप नए नए फेसबुक पे आए हैं, आपको ज्यादा नहीं पता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को देखते हैं, यू ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद मोर एंड मोर पीपल। उसमें कुछ ऐसे भी प्रोफाइल्स आपको नजर आते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, चाहे वो किसी लेडी का प्रोफाइल हो, चाहे कोई हाई एंड बिजनेस प्रोफाइल हो, तो आप उसको लाइक करने की कोशिश करते हैं या आप उसको देखते हैं। ऑल ऑफ अ सडन यू गेट अ मैसेज दैट आई लाइक योर प्रोफाइल, प्लीज कॉन्टैक्ट मी इन माई पर्सनल ईमेल बिकॉज आई नीड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंसान जो होता है ना, इसको ल्योर करता है ये चीजें, ये जाके ईमेल कर देता है। ईमेल में क्या होता है, कोई लेडी आपके सामने है एंड शी मेक्स अ स्टोरी। ये क्लियरली जो ऑडियंस है मैं उनको बता देना चाहता हूँ, प्लीज 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 कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। वो लेडी क्या आपको बोलती है, पहले तो बात होती है हाय हेलो से, फिर वो आपको ये बोलती है कि आपका प्रोफाइल मुझे अच्छा लगा, यू आर वेरी गुड बाय हार्ट एंड यू आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड अदर थिंग्स। उसके बाद वो अपनी एक कहानी सुनाती है आपको,
कि आई बिलोंग टू सच एंड सच कंट्री, वहां पे वॉर हो गया, सिविल वॉर की वजह से हमें वहां से भागना पड़ा, एंड माय फादर वाज एन अटॉर्नी, माय फादर वाज द प्रेसिडेंट और समथिंग लाइक दैट। अब क्या हुआ कि मैं एक रेफ्यूजी कैंप में हूँ, उसके बाद आई वांट यू टू हेल्प मी। तो कहते यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू हो जाती है, भाई कैसे हेल्प करूं। वो लेडी कहती है कि मेरे अकाउंट में 50,000 पाउंड्स या समथिंग लाइक दैट, बिगर अमाउंट्स, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए जो मेरे पास है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस कंट्री को, इस रेफ्यूजी कैंप को छोड़कर आपकी मदद से आपकी कंट्री में आऊं, और इस पैसे को हम 50-50 शेयर कर लेते हैं। तो आप ऐसा करें, मेरी हेल्प करें, ये पैसा आपको ट्रांसफर करा देती हूँ। एंड अ पर्सन उसके लिए तो एक लॉटरी खुल जाती है, कहता है कि भाई these 50,000 pounds और 5 lakh pounds are coming from nowhere। अरे मुझे तो, मैं तो बस रातों रात करोड़पति बन गया। एंड वो इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते। तो बाद में वो लेडी क्या करती है, अपने फेडरल बैंक को ही बना देती है कि भाई इस बैंक के साथ आप कांटेक्ट करो, लोग करने लग जाते हैं, फिर आप उनको अकाउंट की डिटेल्स दे दो। तो ये एक सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था ये क्राइम इसका, इसी तरीके से हुआ था कि लोगों को ल्योर किया जा रहा था कि मेरे पास पैसे, एक इमोशनल स्टोरी के थ्रू, और लोग इस बहकावे में आ जाते हैं। आपको याद होगा कि फर्स्ट एपिसोड में मैंने कहा था कि फेसबुक पे हम लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, एंड दे थिंक कि फैमिली मेंबर्स से बेटर कोई अनजान आदमी आके उनकी लाइफ में, नाउ ही और शी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत वो खुशियां बस ले आ उसी रहे चीज, हैं। बिल्कुल खुशी। एंड एक और चीज, साइकोलॉजिकल चीज ये है, अक्सर बहुत सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग शायद आपकी नजर में भी आए होंगे, जो किसी न किसी परेशानी से दो चार होते हैं, मींस कि उनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है या कोई और प्रॉब्लम्स होती है, एंड दे कीप प्रेइंग टू गॉड, व्हाटएवर फेथ दे बिलोंग टू, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, ऊपर अल्लाह ताला से या भगवान से, व्हाटएवर देयर फेथ इज, वो दुआ करते हैं, सजदा करते हैं, भाई मुझे किसी तरह से कोई ना कोई चमत्कार करो भगवान, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। These people are emotionally actually very sensitive, और ऐसे लोग बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं इन स्कैम्स के। अब कैसे, एग्जाम्पल बताता हूँ। एक आदमी है, फाइनेंशियली बहुत परेशान है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, उसके जितने भी जान पहचान वाले लोग हैं, भाई बहन फ्रेंड्स, उनसे हेल्प लेने जाता है तो कोई भी नहीं करता है, मना कर देते हैं। बाद में ये आदमी क्या होता है ना, डिसहार्टन होकर भगवान के सामने, अल्लाह ताला के सामने सजदा करके, बो डाउन करके मांगने लगता है, बड़े कहते हैं ना, वो दिल से मांगने लगता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन उसके अकाउंट में, उसके फेसबुक पे एक मैसेज आता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आधा पैसा आपको दे दूंगा या आपको दे दूंगी। वो आदमी इमोशंस में ये सोचने लगता है, देखिए ये आपको मैं, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा हुआ है कई बार, आदमी क्योंकि इमोशनली बहुत डाउन है, सिर्फ अब उसकी अगर जो एक्सपेक्टेशन रहती है, लास्ट वाली होप रहती है भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह से, जो भी उसका फेथ है, वो कहता है शायद अब ऊपर वाले ने ये एक जो है एक तरीका भेजा है मेरी हेल्प करने के लिए, तो वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। आ जाता है। तो उसको लगता है कि शायद मेरी प्रेज, मेरा जो वर्शिप है वो रंग लाया है, ऊपर वाले ने मेरी सुनी, अब फ्रॉम, कहते हैं ना वो, फ्रॉम दोज इनविजिबल सोर्सेज मेरी हेल्प होने वाली है, तो वो उसमें आ जाता है ये सोच के कि शायद ऊपर वाले ने हेल्प किया। बाद में वही इसी स्कैम में आ जाता है कि वो आदमी उसको बहुत ज्यादा करीब लाता है, फिर उसके अकाउंट डिटेल्स ले लेता है, एंड बाज़ औक़ात क्या होता है कि अकाउंट डिटेल्स लेने के बाद में पूरे उसको बोलता है कि इतने फंड्स आपको एज द कमीशन और एज दैट एक्साइज का जो टैक्स है, ड्यूटी टैक्स लगता है इस पे इतना, वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, 2 लाख 3 लाख, और उसके बदले में आपको 50 लाख मिलेंगे। तो वो कहता है भाई अच्छी बात है, तो ये वो करके कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करके, चोरी करके, कुछ ना कुछ करके वो पैसा ट्रांसफर कर देता है, एंड दैट इज द टाइम व्हेन दैट लिंक ब्रेक्स। उसके बाद कोई सामने से नहीं होता। दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा जो मैं बताऊंगा आपको, आम लोग जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके साथ भी फ्रॉड होता है। अब ये फ्रॉड कैसे होता है, बिल्कुल दोज ऑर्डिनरी पीपल जिनके पास फोन जो है वही सिंपल, जो पुराने जमाने के फोन है, टच पैड फोन वाले, उनको भी एक एसएमएस आता है कि आपका नंबर लकी ड्रॉ से आपका सेलेक्ट हुआ है, एंड यू आर एलिजिबल ऑफ विनिंग दिस अमाउंट। बड़ा सा अमाउंट देते हैं, तो आपका नंबर इससे निकाला गया है।
तो अब क्या करना है कि आप किस नंबर पे वापस फोन करो, वो नंबर दिया होता है या फिर कोई लिंक दिया होता है। अब लिंक इसलिए नहीं दिया होता क्योंकि उनका जो फोन है वो इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। अब उसका फोन नंबर आता है, फोन नंबर पे वो वापस फोन करता है, तो सामने से पिक होता है अच्छे से फोन, उसको गाइड किया जाता है, भला हम इस कंपनी से बोल रहे हैं, आपका 50 लाख का जो लॉटरी है वो सैंक्शन हो गया है, अब आपको ये अकाउंट नंबर है, उसमें आपको इतना पैसा डालना पड़ेगा, तब आपका 50 लाख आपको बैंक के थ्रू मिल जाएगा। तो ये एक फ्रॉड होता है। इसमें भी गरीब लोग जो है, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, बहुत गरीब लोग जिनकी अर्निंग बहुत लिमिटेड होती है, 10,000 5,000 ऐसा करके वो जमा करते हैं पैसा, कुछ 20-25 हजार, ज्यादा बड़ी रकम नहीं होती है, 20-25 हजार रुपए, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम होती है, बट उसी 20-25 हजार को वो साइबर फ्रॉड करके उनसे ले लेते हैं, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा देते हैं, उसके बाद वो बैंक का खाता बंद हो जाता है। तो ये एक क्राइम है। इसके साथ साथ क्या होता है कि अब जो इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं, उनको आए दिन लिंक्स मिलती है, व्हाट्सएप पे भी मिल सकती है, या आपके फेसबुक पे भी मिल सकती है, या आपका कोई भी आप कर रहे हो, टेलीग्राम यूज कर रहे हो, या कोई भी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहां पे एक अनजान आदमी आपको जो है लिंक भेज देता है लालच के साथ कि आपने इतना जीता है, आप इसको फॉलो करो। लिंक को जैसे आप कनेक्ट करते हो, उसके बाद यही सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है और आपको ल्योर किया जाता है पैसे के लिए। तो ये एक और जो है ट्रेंड है। अब एक और लेटेस्ट ट्रेंड दैट इज बिकमिंग मोर मोर डेंजरस एंड मोर वल्नरेबल फॉर द यूथ। अभी जो यंगस्टर्स हैं हमारे टीन एज में, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या कॉलेज लेवल पे, इन देयर लेट टीन एज और इन देयर अर्ली 20s, ये इस ग्रुप को ज्यादा टारगेट इसलिए किया जाता है। दे गेट अ मैसेज फ्रॉम अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी ऑन फेसबुक, एक उनको आ जाता है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली बिकॉज लड़की खूबसूरत है, प्रोफाइल खूबसूरत है, तो लड़का जो है इसमें आ जाता है, चलो भाई अच्छी दोस्त मिलेगी तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की ऑल ऑफ जल्दी से क्विकली ऑन फर्स्ट और सेकंड मैसेज वो आपसे ये कहेगी कि आप जो है मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करो, हम लोग वीडियो चैट करेंगे। एंड जो यूथ है, मैंने जो देखा है अभी रिसेंट टाइम्स में, ज्यादा ये भी एक केस है कि यूथ क्या करते हैं, उसको जल्दी से वीडियो कॉल पे ले आते हैं, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे। उसके बाद आपका जो है वो आपको ल्योर करती है डिफरेंट तरीके से, शी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट्स यू एंड अट्रैक्ट्स यू। उसके बाद वो स्क्रीन रिकॉर्ड किया जाता है, हालांकि वहां लड़की भी नहीं होती है। दे दे मेक दोज फेक वीडियोस जो आपको वीडियो पे दिखाया जाता है टू ल्योर यू, आपको एक्साइट करते हैं, आपको अराउज करते हैं। उसके बाद आपके कपड़े वपड़े उतारते हैं और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। एंड वंस दिस कॉल इज सक्सेसफुल, वंस दे आर एबल टू रिकॉर्ड यू नेक्स्ट, उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप इतने पैसे अकाउंट में डालोगे तो वेल, नहीं डालोगे तो आपका ये वीडियो हम आपके फेसबुक पे आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो लड़का डरा डरा सा करने लगता है, 5,000 10,000 20,000, ये उनका टारगेट होता है, 20 25 30 हजार का, जिससे जितना भी पॉसिबल होता है उतना। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यूथ इसके लिए शिकार इसलिए हो जाते हैं बिकॉज उनकी जो प्राइवेसी है, उस डर से कि उनकी प्राइवेसी अब स्टेक पे आ गई है और उनकी प्राइवेसी को अब जो एक्सपोज किया जा रहा है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने पेरेंट्स की इज्जत बचाने के लिए इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। ये किस एंड जब तक वो डिमांड पूरी करते हैं आगे वाले की, तब तक वो सिलसिला चलता है। वंस दे आर सो मच मेंटली बर्डन एंड दे आर सो मच स्ट्रेस्ड कि कुछ सुसाइडल केस, जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की कि सुसाइडल केस ये भी एक कारण बन सकता है कि यूथ सुसाइड क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ दिस फेयर। तो ये सब चीजें तभी शुरू होती है जब आप एक मौका देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है कि आपको हर एक स्टेप पे बहुत ही ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत है। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था, इस एपिसोड में भी बता रहा हूं कि आपको कभी भी अनजान लोगों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। एंड विश्वास अगर आपने करना है, किसी से दोस्ती भी करनी है, कोई आपका फ्रेंड बनता है, लेकिन आपको अपने लिमिट्स के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। ओनली शेयर दैट इंफॉर्मेशन एंड ओनली शेयर दोज things with a person who is in front of you, who has become a good friend of yours। आपको ये लगता है कि दैट यही फ्रेंड आपका सबसे ज्यादा जो है
वेल विशर है, आपका सबसे अच्छा चाहने वाला है, तो उसके साथ भी आप वही इंफॉर्मेशन शेयर करो कि अगर वो इंफॉर्मेशन कल को लीक हो जाए तो You आपको are at एम्बैरेसमेंट no फील, harm. या अगर आपको हार्म ना हो, आप एम्बैरेस ना हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा जो है जो आम लोग, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब ये चीजें आम लोगों के साथ होती है कि उनको एक सामने से एक ऑफर मिलता है, आपको इतने पैसे दे रहे हैं और इसके लिए आपको 10,000 या 20,000 का टैक्स देना पड़ेगा, तो वो आप क्या करते हैं उसमें, ये लोग कभी बताते नहीं किसी को। पीपल यूज टू हाइड दीज थिंग्स। ज्यादा विक्टिम जो है, ज्यादा शिकार इसलिए बने हैं बिकॉज व्हेन दीज ऑफर्स कम टू anybody's मोबाइल और लैपटॉप और एनी अदर ये डिवाइस, वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि बस ऊपर वाले जैसे ना कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के आने वाला है, पैसा आने वाला है, तो ये अपने भाई बहन अपने किसी भी दोस्त को नहीं बताते हैं। तब तक ये सोचते हैं मैं दोस्त को बताऊंगा वो पता नहीं क्या बोलेगा, भाई को बोलूंगा बोलेगा पागल हो गया है मत करना, तो जब तक मैं पैसे ले लूं उसके बाद में दिखाऊंगा लोगों को। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, वो हाइड करते हैं, उनको अच्छी गाइडेंस मिल ही नहीं पाती, वो छुपते छुपाते क्या करते हैं, बैंक पे चले जाते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद उनको ये बोला जाता है कि आप जैसे ही ट्रांसफर करोगे उसके आधे घंटे के बाद आपका, जैसे आपने 10,000 का ट्रांसफर किया, आधे घंटे के बाद आपका जो लॉटरी अमाउंट है 50 लाख का, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उसके बाद जो होता है कि कभी वो चीज आती नहीं है सामने। तो ये चीज दैट बहुत इज, जरूरी है किसी भी यूथ के लिए समझना, एंड देन इंटरनेट को यूज करना, फेसबुक जैसे एप्स, सोशल एप्स को यूज करना, कि जो वो कर रहे हैं वो उनको किसी तरीके से ऑफेंसिव नहीं है और किसी तरीके से हार्म नहीं कर रहा है, राइट? या एब्सोल्युटली। देखिए, हमने लास्ट एपिसोड में भी यही बात की, इस एपिसोड में भी यही हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं, बिकॉज हमारा जो मेन ऑडियंस है, जो हमारा मेन टारगेट है, मेरी जो बात है वो मैं चाहता हूं उन लोगों तक पहुंचे जो इसके ज्यादा शिकार हो जाते हैं। एंड मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज द यूथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हीं के साथ ये चीजें हो जाती है। और इसी चीज का जो रिजल्ट आता है, एंड रिजल्ट हमारे पास जो है, जो हम अपनी लाइफ में आजकल देख रहे हैं, दैट इज द मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल स्ट्रेस, उसके बाद सुसाइडल केसेस। और ये सुसाइडल टेंडेंसीज इसी वजह से बढ़ती है जब आपका मेंटल जो है स्ट्रेस है वो काफी लेवल तक बढ़ जाता है। लेकिन इसको बढ़ाने वाला एक्चुअली कौन है, वो कोई और नहीं है, आप खुद हैं, बिकॉज यू हैव नॉट हैंडल्ड द सिचुएशन एज इट डिमांड्स। आपने क्या किया है, आपको एक्सप्लॉइट किया गया है और बिना आपके को नोटिस किए हुए आप इन चीजों में अपने आप को लगा देते हैं जो चीज आपके लिए सेफ नहीं है। यू बिकम अ फ्रेंड with somebody who looks very beautiful, who looks very gorgeous, लेकिन उसका बैकग्राउंड आपको पता ही नहीं है, वो कौन है, कहाँ से है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, एक और चीज मुझे इस पे याद आ गई, एक और जो आजकल ट्रेंड चल रहा है लूटने का, वो ये है कि आपको एक चाहे आपको एसएमएस आता है या आपको व्हाट्सएप नंबर, बिकॉज रैंडमली अब आप कहेंगे कि मेरा व्हाट्सएप नंबर कहाँ गया, क्यों गया, कैसे गया, किसने दिया। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका नंबर कोई एक्सपोज करे, आपका नंबर रैंडमली भी लग सकता है। प्लस दूसरा है कि आए रोज आपको पता है कि इंटरनेट पे डिफरेंट स्कीम्स आ जाती हैं कि भाई लोन मिल रहा है, लोन आपको इतना मिलेगा, आपको मुद्रा लोन मिलेगा, आपको गाड़ी का लोन मिलेगा विद ऑन अ वेरी मार्जिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं एंड आप क्या करते हो, उसको क्लिक करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, भाई देखा जाए। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो, उस पर आ जाता है एक नेक्स्ट आपका जो पेज आ जाता है कि प्लीज फर्निश योर डिटेल्स बिफोर प्रोसीडिंग। तो आप अपना फोन नंबर डालते हैं, नाम डालते हैं, उसके बाद आगे करते हैं विदाउट कंफर्मिंग दैट लिंक कि वाकई बैंक का लिंक है नहीं है, कहाँ से आया, कहाँ। आपने इंफॉर्मेशन डाल दी और वही इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर हो गई। और फ्रॉडस्टर्स जो है उनको यही चाहिए। उसके बाद आपके नंबर पे एक मैसेज आता है किसी भी अननोन नंबर से कि आप मुझे अच्छे लगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप मुझे अच्छे लगे, मेरे पास ये इतनी दौलत है, मैं इसमें से आपको एक शेयर देना चाहती हूँ, आप मेरी हेल्प करो। आप मेरे इंडिया, जैसे हम इंडिया में बैठे तो इंडिया आने के लिए आप मुझे थोड़ा गाइड करो। आई वांट टू कम टू इंडिया एंड आई वांट टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस एंड बाय द टाइम आई वांट टू मीट यू एज वेल, आई वांट टू गिव यू सच अमाउंट। उसके बाद
आप क्या करते हैं, आपको लगता है कि भाई फॉरेन का फ्रेंड मिल गया या फॉरेन की फ्रेंड मिल गई तो चलो, उसके बाद आपको एक फोन और आता है, एक डेट मिलती है कि इस डेट को आई एम अराइविंग एट सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, से दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट, सो आई एम कमिंग टू योर कंट्री, एंड यू से वेलकम, एंड यू बिकम एक्साइटेड कि भाई अब आने वाला फॉरेन फ्रेंड आएगा मेरा या फॉरेन फ्रेंड आएगी मेरी। एंड जिस दिन की डेट आपको दी गई होती है उसी दिन को आपको एक कॉल आता है फ्रॉम इंडियन नंबर या किसी और नंबर से। तो आप जब कॉल अटेंड करते हो, आपको यही, ये जो फ्रेंड जिसने आपके साथ कांटेक्ट बनाया है, ही और शी सेज कि आई एम एट द एयरपोर्ट एंड आई हैव बीन डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस। मेरे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जो मैं आपके लिए लाई हूँ या आपके लिए लाया हूँ, उसमें लैपटॉप है, ये है, वो है, लेकिन एयरपोर्ट वालों ने मुझे यहाँ पे डिटेन कर दिया है एंड दे वांट टू नो कि मेरा कोई जान पहचान वाला है कि नहीं है। एंड फिर वो आपको, वो लेडी या वो कोई जेंटलमैन होगा, वो किसी और को फोन दे देता है जो आपकी कंट्री में आपके लैंग्वेज में आपसे बात करता है कि भाई आई एम द सिक्योरिटी ऑफिसर एट द एयरपोर्ट, ये आपका जो फ्रेंड है इसके पास इतना सामान है। तो आप एक बार और फिर से लालच में आ जाते हो, भाई अब मेरे पास फॉरेन लैपटॉप आएगा, ये आएगा वो। तो हाँ जी, क्यों रोका है? क्योंकि इसको जो है कस्टम ड्यूटी देनी है यहाँ की इंडियन करेंसी में, और इनके पास जो पैसा है वो डॉलर में है या इनके पास कैश है नहीं, ये चीजें बोल सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, मैं क्या करूं? अब आप इनकी हेल्प करो, आपको 30,000 या 40,000 वट एवर अमाउंट डिमांड, ये आपको जल्दी से इस अकाउंट में डालना पड़ेगा ताकि इनका जो है बैगेज यहाँ से क्लियर हो जाए। बैगेज की क्लियरेंस के लिए आपको ये अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा। तो लोग आ जाते हैं इसमें भी। हाँ जी, ये भी चेक हो गया कि फॉरेन से फ्रेंड आया, अभी तक फॉरेन कांटेक्ट पे था, चाहे इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा था या मैसेज आ रहा था। अब लोकल नंबर क्योंकि इंडियन नंबर से आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वाकई में वो फ्रेंड शॉर्ट जो है कि ये ट्रस्टवर्दी है और मैं उसको पैसे दे सकती हूँ। हाँ, इंडिया, तो वो एकदम से उठा के दे देते हैं और एक 30-40,000 का अमाउंट आपका वो चुना ऑल ऑफ अ सडन लग जाता है, क्योंकि उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होगा और सामने से कोई आएगा नहीं। फिर आप पूरी जिंदगी वेट करते रहे, एयरपोर्ट से जो है फ्रेंड आने वाला है वो कभी आने वाला नहीं है। तो ये भी फ्रॉड्स हैं। तो दीज थिंग्स आर एक्चुअली क्राइम्स, दिस इज अ साइबर क्राइम। बट इसके जो शिकार आप इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आपकी जो इनोसेंस है वो आपकी न्यूसेंस बन जाती है। आप इनोसेंट नहीं रहते, आप न्यूसेंस में आ जाते हैं, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है सिर्फ एक छोटी सी लालच के लिए। एंड वही बात फिर से हम कहते हैं ना, वो पूरी दुनिया गोल है, घुमा फिरा के जब हम इस सारे चीजों का क्रक्स निकालते हैं, वो यही निकलता है कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर पे भरोसा नहीं करना है। प्लस आपने इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए, इन सब चीजों के लिए करना है, नॉट फॉर मेकिंग मनी। हाँ, आपका बिजनेस है, रियल बिजनेस है, आप बिजनेस स्टोर्स पे जाते हैं, आप बिजनेस जो है पार्टीज बनाते हैं, आपको उनके साथ फिजिकल रिलेशन है। उसके बाद आप जो यूज करते हैं, इंटरनेट का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, कंपनी के साथ बाज़ाब्ता करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट साइबर वर्ल्ड, बट दैट इज वेरी सिक्योर, क्योंकि उसमें आपको पता है कि आप किस पार्टी से क्या डील कर रहे हैं। और बैंक जैसे कि एक और चीज जो आप देखते होंगे, हर एक देखता होगा, अगर आपका भी किसी भी बैंक में अकाउंट है तो बैंक से अक्सर मोस्ट ऑफन मैसेजेस आते हैं आपको कि वी नेवर आस्क फॉर योर पर्सनल डिटेल्स, वी नेवर आस्क फॉर योर डेबिट कार्ड डिटेल्स, वी नेवर आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपका बैंक खुद आपको ये कहता है कि ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करो, आप किसी को भी फोन के जरिए किसी को भी अपनी बैंक की डिटेल्स मत दो, हम आपसे नहीं पूछ रहे। तो उसमें क्या होता है कि ये भी एक फ्रॉड है कि आपको एक कॉल आता है, जी मैं स्टेट बैंक से बात कर रहा हूँ, किसी और बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका जो डेबिट कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है और वो 24 घंटे के बाद आपका ब्लॉक हो जाएगा। हाँ, ये अनब्लॉक हमें करने के लिए एज अ सिटीजन ये जो कॉल्स आते हैं, हमें खुद जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि ऐसे जो कॉल्स आते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकें। और हमें आई थिंक ये सारे बैंक्स भी मैसेजेस करते हैं कि बैंक इटसेल्फ नेवर आस्क्स यू फॉर एनी ओटीपी एंड एनी अदर डिटेल्स। तो एज एन ऑडियंस, जो ऑडियंस हमें सुन रही है या आगे चल के सुनेगी, ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमें
कि जो भी हमें मैसेजेस आते हैं स्पेशली अननोन नंबर्स से, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आए, चाहे वो किसी सोशल मीडिया ऐप पे आए, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट उनको भेजने वाले कौन है, who all are the senders of those messages. And with this, because एजाज जी, हम we are already lacking time. आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया आज हमें. Only one thing I would like to add quickly, very quickly. हमने बात की कि अनजान लोगों पे भरोसा नहीं करना है, अनजान लोगों के मैसेजेस को इस तरह से जो है रिप्लाई नहीं करना है, उसमें नहीं फंसना है. एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जाते जाते बताना चाहूंगा कि कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि आप फेसबुक पे हैं, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, एंड अमंग दोस फ्रेंड्स आपका एक जानने वाला, जैसे मेरी एक फ्रेंड है चिन्मय, मेरी फ्रेंड है, एंड मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, फिजिकली मैं उनको जानता हूँ और हमारी अच्छी एक रिलेशन है. लेकिन फेसबुक पे चिन्मय का प्रोफाइल मुझे दिख रहा है और चिन्मय के प्रोफाइल, नए प्रोफाइल से मुझे मैसेज आता है. देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है दिमाग में रखना पड़ेगा. चिन्मय का एक नया प्रोफाइल आता है, उससे मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिलती है, तो मैं समझता हूँ कि चिन्मय है, मेरी फ्रेंड है पहले से, तो मैं उसको एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ. एंड जैसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ या एक्सेप्ट करने से पहले ही चिन्मय का मुझे मैसेज आता है इनबॉक्स में, आई एम इन अर्जेंट नीड ऑफ ₹25,000 और 50,000, बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तो किसी भी तरीके से आप मुझे दे दो, कल मैं आपको वापस कर दूंगा. और मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी फ्रेंड है, मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा. इमीडिएटली मैं कहता हूँ चलो अकाउंट नंबर दे दो, मैं करता हूँ. ये एक नया ट्रेंड है जिसमें आपके नोन जो आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं, उनका प्रोफाइल लेके उसको डुप्लीकेट किया जाता है, उसी डुप्लीकेट प्रोफाइल से आपको मैसेज आता है और आप ये सोचते हैं कि अब मैं फ्रेंड को क्या इनकार करूं, मेरे पास तो यार इतनी अच्छी रिलेशन है, अब 20,000 या 30,000 के लिए क्यों रिलेशन खराब करूं, तो उठा के दे देते हैं. बाद में पता चलता है कि चिन्मय कहती है मैंने, मेरा तो कोई प्रोफाइल है ही नहीं, मेरे तो पुराना प्रोफाइल है, नया तो मैंने कोई बनाया नहीं. तो इस चीज से भी खबरदार रहने की जरूरत है. जो मैं आपकी बात को ऐड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आपने जो भी रिपीट किया कि ऑडियंस जो स्ट्रेंजर्स हमें से सुन रहे नहीं हैं या लेना सुनने वाले चाहिए. हैं, हाँ, तो इस अगर ऐसी सिचुएशन है, आपका कोई नोन फ्रेंड भी कोई मैसेज करता है रिगार्डिंग मनी और रिगार्डिंग सम हेल्प, इट्स बेटर कि आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट करके पूछें कि क्या आप ही ने मैसेज भेजा है, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है. तो अगर ऐसा है तो आप बताइए डायरेक्टली, क्योंकि या आपके पास फोन डेफिनेटली. नंबर ऑलरेडी है, या आप फोन नंबर नहीं है तो आप डायरेक्ट उनके को ये जो है फिजिकली स्पेशली, उनसे मिल के बात करेंगे. या स्पेशली कॉलेज फ्रेंड्स के बीच में होता है, होती हैं ऐसी चीजें, इन पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं हम इसको, कि फेसबुक पे ऑलरेडी एक फ्रेंड है, उसी के नाम से दूसरा अकाउंट खोल दिया है किसी और स्कैमर ने. सो इन सच थिंग्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू ड्यू डिलिजेंस और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन अमॉन्ग आवर फ्रेंड्स, कि कोई स्कैम, फ्रॉड या फिर कुछ serious criminal activity ना हो जाए. And with this, sir, I think we are ready to conclude today's talk show. And it was a very content rich. And I'm very sure all of you, whosoever will watch, will get so many examples related to cyber crimes and frauds. And this is definitely going to help you to avoid yourself getting into mess, any kind of wrong mess in your life. Sir, over to you. Anything you would like to conclude? Yeah, actually, this is such a topic जिसका end Is not ढूंढना शायद possible. पॉसिबल नहीं है, because there are so many things जो इंसान कोशिश करता है लेकिन टाइम की वजह से बोल नहीं पाता. मैं इतना ही कहूंगा, जितनी भी हमारे ऑडियंस है जिन्होंने हमारा लास्ट एपिसोड भी देखा है, ये वाला एपिसोड भी देखा है, एंड इन दिस कनेक्शन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू दिस एंड यू वांट टू क्लियर दैट थिंग, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हैं, या कोई चीज जहां पे आपको गाइडेंस की जरूरत है, विल बी डेफिनेटली देयर फॉर यू. आप पूछ सकते हैं. तो आपके थ्रू जो है तमाम ऑडियंस को मैं यही बताना चाहूंगा, इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस और एनी कंफ्यूजन्स और एनीथिंग people want to ask about these things, they may ask इस जो है अपलोड पे बाद में कमेंट करके, या आपके इनबॉक्स या मेरे इनबॉक्स तक पहुंच के डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं. विल डेफिनेटली डू आवर बेस्ट टू गाइड पीपल, बिकॉज दिस इज आवर वर्क. ये मेरा काम है, आपका काम है. आपके तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है हमारी यूथ या हमारी ऑडियंस तक पहुंचे. एंड ऑडियंस को अगर जो भी हमारे एपिसोड जैसे भी लगते हैं तो उस पर जरूर कमेंट करें, ये मैं चाहूंगा उनसे.
और कमेंट करने के साथ अगर उनको अच्छा लगता है ये भी कहें, अगर आपको कहीं कोई चीज की कमी रहती है या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं वो भी करें, उससे हमें भी लगेगा कि नहीं आप जो है हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारी जो कोशिश है वो सफल हो रही है। दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही। So friends, don't forget to subscribe to this YouTube page, and also like, comment and share. Thank you so much, and see you in the next episode. Thank you.